nominal 1,000 meters for Dragon. We copy 1,000 meters. Great visual confirmation as well as those comms that the 4 main parachutes have deployed. Again, we are going to be slowing down the vehicle from 350 miles per hour all the way down to just about 15, 16 miles per hour by the time that the vehicle touches down and splashes down into the ocean. Exactly right. You know, you mentioned these beautiful visual confirmations that we're getting. You know, an important aspect of today's specific splashdown is that it's occurring at night. SpaceX Dragon 800. Copy 800 meters. Commander Peggy Whitson confirming the spacecraft's altitude as it's making its descent into the Pacific Ocean just off the coast of San Diego in Southern California. Yes, love that it's coming off the coast of my hometown. 600 meters. 600 meters. And at 600 meters, we're just under a minute before that expected splashdown. The landing in water is a lot simpler and more reliable. Provides a little bit of margin against unlikely parachute issues. We did have to learn how to make Dragon waterproof as we are splashing down into the ocean. But SpaceX copies 400 meters. Reminder to brace for splashdown. Oh, that's a pretty cool view. Yeah. That's right. Maintaining the vehicle's signature through things like cloud layer and any kind of atmospheric disturbance allows us to maintain visual contact with the vehicle as it's making its final descent towards water landing. And it's a little foggy, as you can see there. Yeah, Pacific fog is rolling in. We've got some very bright lights as Dragon, you can see the ocean there. Dragon is about to touch down in just a few seconds here. And working their way towards the vehicle are the SpaceX and Axiom support teams that will be present for the next phase of our splashdown coverage today. At this point, we'll be waiting for confirmation of the crew's safe landing, and then we'll move into the phases of this mission, which are really, let's recover the vehicle, let's recover the crew, let's make our assessments, and at that point, we'll be covering. And we have splashdown of the AX-4 crew back on planet Earth. Welcome home. SpaceX Dragon splashdown. We are in Stable 1. SpaceX copies splashdown and Stable 1. On behalf of SpaceX, welcome home. And thanks for the... So now you can see a couple fast boats are going to be approaching the Dragon spacecraft. We're going to start with making sure that the spacecraft is safe. They're going to do some sniff checks. They're going to pick up those main parachutes. As Dragon splashed down, the chutes were immediately cut to make sure there's no safety issues there. So we'll pick up those main parachutes up. And then they do the doffing and all that. Yeah. I think and this is a moment that we should all take. Once the crew deems that the spacecraft is safe, then our recovery vessel Shannon can begin to approach and begin the recovery process. For India. So we are now eagerly waiting on recovery of our Dragon spacecraft with the AX-4 crew. Dragon has already autonomously completed several steps to save itself following splashdown. So for those of you just joining us, the return of AX-4 has gone smoothly so far, and we just got great confirmation that crew has splashed down. So Dragon successfully re-entered the Earth's atmosphere, followed by deployment of its parachutes to slow the spacecraft down to a gentle 15 miles per hour.
And at that point, they successfully splashed down in the Pacific Ocean at 2:31 a.m. Pacific time off the coast of Southern California. So at this point, like you mentioned, Jesse, we are just waiting for Dragon's recovery of that to slow the spacecraft. Yeah, upon detection of landing, Dragon automatically releases. at 2:31 a.m. Pacific time off the coast of Southern California. Okay, students, so at this just point, like settle you mentioned, down. Jesse, we are Just sit just down. waiting for Dragon's recovery. You've seen something historic right now. Yeah, and if upon you just detection keep of looking landing, at the Dragon screen, automatically releases the main parachute you to will prevent see wind how from pulling the they will spacecraft. be brought out Dragon of then the sea, automatically out of saves the any craft. pyrotechnics still Please present settle on down, the children. vehicle and may automatically perform additional Please minor settle system down. reconfigurations. The astronauts remain seated and in their suits at this point, but the onboard air conditioning Just sit keeps down. temperatures in check inside the spacecraft, and the communication systems on board remain powered so the crew can continue to communicate. और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कुमार। शुभांशु के परिवार वाले सीएमएस में मौजूद है, फिलहाल अभी बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि जो एक अरे मनीष भैया never done before. And therefore, as I said, today indeed, Bharat has found an enduring space in the world of space. Thank you, ladies and gentlemen. And as you all know, the chronology of it that would follow, all of them would be in the quarantine for over next 1 week, maybe up to 23rd. And from 24th onwards, they would be having team discussions with the experts from the ISRO. Then for the next 3-4 days that will continue, after which they would be spending time having separate discussions with the representatives of Axiom, representatives of SpaceX, and representatives of NASA separately. That's called debriefing. And after that is accomplished, which would go on for about maybe nearly 2 weeks, till about 12th or 13th of April. Then they'll start preparations for returning home, in case of Shubhashu to return back to India. So that could be around 14th or 15th, the preparations will begin. And as of now, we speculate that he should be with us over here on the 17th of August. 17th. जैसा मैंने कहा कि विश्व के लिए ये गर्व का पल तो है ही है, भारत के लिए एक अद्भुत आनंद का पल कि भारत मां का एक सुपुत्र आज कामयाबी से लौटा है, एक ऐसे प्रयोग से, एक ऐसी यात्रा से जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो पहले कभी ना किए गए थे, लेकिन जिनका समस्त मानव जाति के लिए महत्व रहेगा। और जैसे मोदी जी हमें हमेशा सिखाते हैं वसुदेव कुटुंबकम, और साथ ही साथ हमें याद करवाते हैं कि भारत को विश्व बंधु बन करके अपनी भूमिका निभानी है। आज वास्तव में विश्व बंधु के रूप में शुभांशु ने हमारी तर्जुमानी करते हुए वो काम वहाँ अंजाम दिया है, और ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्थायी स्थान भारत को आज स्थापित करने का अवसर भी रहा, सफलता भी रही। And as I said, in the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, and also in the true spirit of discharging the role of Vishwabandhu as envisaged by Prime Minister Modi, a son of Mother India has accomplished for the entire mankind some of such experiments which were never conducted before, but which would have a bearing, which would have relevance for the mankind across the world, across the planet Earth. Thank you. और इसमें हाँ वापसी का भी चलिए हिंदी में बता देते हैं कि अभी रात को 11:30 बजे के लगभग वहाँ से उनकी रवानगी होगी
ह्यूस्टन पहुंचना होगा 8:30 8:30 और 9 के बीच में, जो हिंदुस्तानी टाइम है, भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 8:30 और 9 के लगभग उनकी रवानगी होगी वहाँ से। अभी वो लैंड हुए हैं ऑफ द कैलिफोर्निया कोस्ट सैन डिएगो में। 8:30-9 बजे के वहाँ से रवाना होने के बाद उसके पश्चात लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता है। 11:30 बजे तक लगभग ह्यूस्टन पहुँचेंगे। अगले 5-6 दिन रिहेबिलिटेशन की एक्सरसाइज चलेगी, क्योंकि उन्हें they'll have to get used to the Earth's atmosphere and the Earth's milieu। लगभग 23 तारीख तक ये क्रम मुकम्मल होगा और तत्पश्चात लगभग 1 सप्ताह उनकी टीम डिस्कशन चलेंगी इसरो के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ, और तत्पश्चात फिर लगभग 15 दिन से अप टू ऑलमोस्ट 13th और 14th ऑफ अगस्त उनकी डीब्रीफिंग के सेशंस रहेंगे। अलग अलग जो इसमें स्टेक होल्डर्स थे, जो पार्टनर्स थे, एक्सियम की टीम के साथ, नासा की टीम के साथ, स्पेसएक्स की टीम के साथ, और फिर 14-15 के लगभग अगस्त उनकी वापसी की तैयारी होगी। और जैसा कि अभी योजना बनाई गई है उसके मुताबिक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 17 अगस्त के लगभग सुभांशु दिल्ली हमारे बीच होंगे। और जैसे मैंने आरंभ में कहा कि विश्व बंधु बनने का जो आह्वान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, उसका पहला संकेत आज सुभांशु के माध्यम से। धन्यवाद, और साथ में आप लोगों का भी धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना सबको दिखाया, पूरी मेहनत की, दिल दुनिया को दिखाया कि कैसे गया और कैसे आया बेटा, मतलब पूरा आप लोगों ने दिखाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी आप उस वक्त जब लैंडिंग बेटा इतने दिन बाद लौटा है तो थोड़ा सा भावुक होना बनता है, लेकिन खुशी से बहुत ज्यादा। कल बात हुई थी, क्या कुछ बात हुई थी, क्या कह रहे थे आखिरी समय में? कल नहीं बात हुई है, परसों बात हुई थी। धन्यवाद है आपको, धन्यवाद है सबको, धन्यवाद है सबको, धन्यवाद है, बहुत खुश है, पूरा परिवार बहुत बड़ा मिशन करके आया। करो आप करो ना, आप जाओ इधर We still have something to watch। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। And we are so happy। We have next step right now। Please watch that immediately. It's important one, very important। He's coming out of the cupola, that coupon। Please watch that। ये देखो एक ये अरे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो हो जाएगी थोड़ी। तो ये उस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इससे पहले आप उनकी माँ को सुन रहे थे, उनकी धर्मपत्नी को सुन रहे थे, जो बेहद भावुक कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। शुभांशु की धरती पर वापसी के बाद वो भावुक नजर आ रही थी, और ये तस्वीर उसी पल की है जब शुभांशु की वापसी हो रही थी। उस पल की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि मिशन संपूर्ण हुआ है। 18 दिन के बाद पृथ्वी पर कदम रखे हैं शुभांशु शुक्ला, और अब वापस आ गए हैं कैलिफोर्निया के तट पर। उनकी लैंडिंग हुई है, और हालांकि आपने केंद्रीय मंत्री को भी सुना, जितेंद्र सिंह को। यहाँ पर वो तमाम जानकारी साझा करते नजर आए हैं, क्या क्या आगे की प्लानिंग है, किस तरीके से शुभांशु अब वापस लौटे हैं तो आगे क्या क्या किया जाएगा, इसरो क्या करेगा, नासा की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग है, तमाम जानकारी वो विस्तार से साझा करते नजर आए। हालांकि खुशी की बात यह है कि भारत का लाल अंतरिक्ष में कमाल करके 18 दिन के बाद धरती पे वापस आ गया है। पूरा देश इस वक्त खुश नजर आ रहा है। खुशी का माहौल पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही 2 दिन पहले से ही हमने देखा कि किस तरीके से दुआओं का दौर जारी था, प्रार्थनाओं का दौर जारी था, और उन्हीं दुआओं का असर देखने को मिला है, प्रार्थनाओं का फल देखने को मिला है कि 18 दिन के बाद शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस आ गए हैं। मिशन संपूर्ण हुआ और शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस आ गए हैं। हालांकि ये उसी वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये लाइव लैंडिंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जहां पर लाइव लैंडिंग हो रही थी कैलिफोर्निया में। उस वक्त की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये दौर, ये सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है इस पूरे मिशन का जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धरती पर जब वो वापस लौट रहे थे, हर किसी की सांसें थमी थी, हर कोई प्रार्थना कर रहा था, यहाँ पर दुआएं मांग रहा था। और यहाँ पर देखिए उनकी माँ, उनकी धर्मपत्नी, उनके पिताजी कितने भावुक नजर आ रहे हैं। प्रार्थनाओं का दौर जारी है। हर कोई खुश इस वक्त नजर आ रहा है क्योंकि शुभांशु शुक्ला 18 दिन के बाद मिशन कंप्लीट करके धरती पर वापस आ गए हैं। ये दौर जिस वक्त की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये काफी चुनौतीपूर्ण इस पूरे मिशन का हिस्सा था। जो पूरा वक्त था जो गुजरा है, वो किस तरीके से परिवार अब थोड़ा सा वो तो रहता ही है, मन में रहता है कि क्या सक्सेस हो जाए, एक चीज तो रहती है, तो वही चीज रही मन में। अभी 10-15 दिन लगेंगे, 15 दिन का है टाइम है, जो यहाँ इंडिया आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। अब वो आएंगे तब फिर देखेंगे, तो मतलब पहले डिसाइड तो हो उनका आने का, तब तैयारी करेंगे। शुभांशु शुक्ला के पिताजी को सुन रहे थे आप, जहां पर वो ये कहते नजर आए कि 10 दिन तो लगेगा इंडिया वापस आने में। हालांकि हमने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को सुना जिन्होंने ये कहा कि 15 अगस्त तक हो सकता है कि शुभांशु शुक्ला वापस आएंगे। इसके बाद अभी वो कैलिफोर्निया में लैंड कर गए हैं, सुरक्षित धरती पर उनकी वापसी हो गई है। लेकिन अभी बहुत तरह की प्रक्रिया है जो होने वाली है लैंडिंग के बाद। शुभांशु और AX4 टीम को 10 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना होगा क्योंकि जब वो अंतरिक्ष में थे तो वहां का एक अलग वातावरण था। उन्हें धरती पर वापस आने के बाद इस वायुमंडल में, इस वातावरण में ढलने के लिए उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा। उनके स्वास्थ्य की जांच होगी, अंतरिक्ष प्रभावों से उबरने में समय लगेगा और ये समय जो है वो भारत के लिए बेहद गर्व का पल, पूरे नेशन, मेरे लिए एंड पूरे नेशन के लिए ऑफ कोर्स। एंड अभी भी प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन। अभी उनको उस कूप से बाहर आना है, विच वी आर वेटिंग फॉर। दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड वी आर हाईली एक्साइटेड। शब्द कम पड़ रहे हैं, अभी कोई स्केल नहीं है प्राउड का, वरना वो स्केल टूट जाता आज। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। कम पड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है क्या? तो शुभांशु शुक्ला की धर्मपत्नी को आप सुन रहे थे। शुभांशु शुक्ला की समुद्र में लैंडिंग हुई है और भारत के अंतरिक्ष इतिहास में ये एक सुनहरा अध्याय जोड़ती है। ये उस वक्त की हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जब लैंडिंग हो रही थी, समुद्र में ये लैंडिंग हो रही थी, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि ग्रेसयान के साथ उनकी वापसी न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि है बल्कि देश के लिए एक प्रेरणा भी है। हमने देखा कि जब वो अंतरिक्ष में थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनसे पूछा था कि वहां से धरती कैसी दिखती है, कैसा लग रहा है, ऊपर से नीचे देखते हैं तो कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि मानो हमेशा निहारते ही रहे। उन्होंने कहा भी कि जब हम अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद जितना भी टाइम मिलता है वो ऊपर से नीचे धरती को निहारते हैं और काफी भावुक भी वो नजर आए। आपको जानकारी दे दें कि अभी उनकी धरती पर वापसी तो हो गई है, कैलिफोर्निया के समुद्र में उनकी लैंडिंग तो हो गई है, लेकिन 10 दिन के आइसोलेशन के बाद ही वो नॉर्मल लाइफ में लौट पाएंगे। लेकिन उनकी ये यात्रा हमेशा याद रखी जाएगी। ये भावुक पल आप देख सकते हैं जहां पर उनकी माँ, उनकी धर्मपत्नी, उनके पिताजी काफी भावुक नजर आ रहे हैं और ये उस पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो बेहद चुनौतीपूर्ण पल थी। और इस वक्त आप देख सकते हैं उनकी माँ कितनी भावुक नजर आ रही है। मन में खुशी है, जोश है, उत्साह है, लेकिन एक कहीं ना कहीं डर भी है, डर भी था क्योंकि काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये समय था। इस पूरे मिशन का सबसे चुनौतीपूर्ण ये समय था जब उनकी वापस धरती पर लैंडिंग हो रही थी। दरअसल ये लैंडिंग समुद्र में हुई है, लेकिन जब उनकी लैंडिंग हो रही थी धरती पर, जब उनकी वापसी हो रही थी, तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय था। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय था और ये आज का दिन और ये समय 3 बजे जो उनकी लैंडिंग हुई है, ये इतिहास के सुनहरा अध्याय को जोड़ती है। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक सुनहरा अध्याय को जोड़ती है। ग्रेस यान के साथ उनकी वापसी कुछ नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़े अपना इसी तरह से। Mission lineage, right, allows crew members. तो 15 जुलाई 2025 दोपहर 3 बजे
एक ऐतिहासिक पल आया जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 18 दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS यात्रा करने के बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। ये उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी जो एक्सोम मिशन 4 के तहत उनकी ये यात्रा हुई थी और उसी का ये हिस्सा था। शुभांशु एक्सप्रेस के ग्रेस यान में लौटे हैं और कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में उनकी सुरक्षित लैंडिंग की गई है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ये गर्व का क्षण था। पूरे देशवासी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो यान से बाहर आएंगे। ये लगातार हम आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां पर शुभांशु शुक्ला की प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग हुई है। धरती पर वो वापस आ गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। फिलहाल वो यान में ही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। थोड़े ही समय में वो यान से बाहर आएंगे। हालांकि जो ये प्रोसेस है ये अभी थोड़ा लंबा चलने वाला है। हमने जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री है उनको सुना, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक शायद वो भारत लौट पाए। हालांकि उनके पिताजी का कहना है was known to have the instinct or the capacity to survive in the extreme conditions. So, in order to make an evaluation, how best could a living being from Earth behave there or survive there? So, all this I think has a huge bearing on our future experiments in future voyages where human beings may have to stay there longer than today. And that's why I said the experiments conducted by Subhashu are going to be of relevance to the whole world. Taking last question, sir, how does this mission reflect India's growing capabilities and how do you see? I think India had already proven its capabilities, but this is one step ahead. We are still going one level ahead. Now we are in a stage where we can also tell the world that look here, we can take upon ourselves the responsibility of performing such experiments. तो आप केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को सुन रहे थे जहां पर वो तमाम जानकारी साझा करते नजर आए। हालांकि शुभांशु शुक्ला वापस आ गए हैं। यान से निकलने की तैयारी लगातार जारी है। फिलहाल जो प्रक्रिया है वो अभी चल ही रही है। तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। लेकिन 15 जुलाई 2025 दोपहर का 3 बजे ये समय हर किसी के जेहन में याद रहेगा, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की 18 दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा समापन के बाद धरती पर सुरक्षित लैंडिंग हुई है। प्रशांत महासागर में उनकी लैंडिंग हुई है। हर किसी की सांसें थमी थी, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग के बाद हर कोई चैन का सांस ले पाया। हर किसी को सुकून मिला। प्रार्थनाओं का दौर लगातार चल रहा था। दुआएं मांगी जा रही थी उनकी सुरक्षित लैंडिंग के लिए, सुरक्षित वापसी के लिए, और अब वो सुरक्षित लौट आए हैं। हालांकि भारत अभी आने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि वो अभी वहां से आए हैं। उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा। 10 दिन के आइसोलेशन के बाद ही वो नॉर्मल लाइफ में लौट आएंगे, क्योंकि एक लंबी यात्रा के बाद 18 दिन के बाद वो अंतरिक्ष में 18 दिन रहने के बाद धरती पर वापस आए हैं। तो थोड़ा समय लग सकता है यहाँ के वातावरण को, यहाँ के वायुमंडल में खुद को ढालने में, इसलिए उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा। मेडिकल रिकवरी के बाद ही वो वापस एक नॉर्मल जिंदगी में आ पाएंगे। हालांकि अभी डॉक्टर की टीम की निगरानी में वो रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे। Is a huge step forward for what you just mentioned earlier about making sure that that human spaceflight as a team sport continues for everybody to understand what's going on, because now Shooks and Suave and Tibor have a very important distinction, and they now have a very unique perspective on what it takes for a human spaceflight mission to occur. तो कुछ ही देर में शुभांशु शुक्ला यान से बाहर आएंगे, लेकिन उनकी सुरक्षित वापसी के बाद और इस मिशन के पूरा होने के बाद हर कोई खुशी महसूस कर रहा है। आपको जानकारी दे दें कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सोम 4 मिशन के अंतर्गत 18 दिन के अंतरिक्ष में रहने के बाद 4 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौट आए हैं। नासा और एयरस्पेस के इस संयुक्त मिशन में 4 देशों के अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। शुभांशु करीब 23 घंटे के सफर के बाद आज पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं और हर